Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. Class, today we are going to start syllabus of English grammar. So as we always do, first of all we will write thought. And before writing thought, please make sure that the earlier page of the thought should be blank. First of all, you will mention date and page number. And as you can see, for writing the thought you will take the center portion of the page. As you can see, you have to take the center portion, then your thought will look good. So what is thought? Shoot for the moon, even if you miss you will land among stars. It means that we should make a greater aim. So when if we will be failed in to achieve in aim, then at last we will get something valuable. So that's why we should make a greater aim in our life. So as you can see, your page should be look like this. You can draw moon or star on the page. You can draw moon or stars on the page for decorating it. After writing the thought, as you can see in the video, you will mention your syllabus. First of all, you will mention page number and date. Then you will mention the heading of half yearly syllabus, then tentative date. Then you will mention your chapters, which are the syllabus of half yearly. Lesson 7 articles, lesson 8 pronouns. And class, when you will write the syllabus, please leave one line when you will write the lesson number. So lesson 7 is article, lesson 8 is pronoun, lesson 9 auxiliary and modal verbs, lesson 7 verb finite and non-finite, tenses, transitive and intransitive verb, paraphrasing and summary, picture composition and comic strips. Then lesson 15 paragraph writing. Then lesson 16 writing messages. After that you will draw a line and you will also underline the heading of lesson number, so your work will look good. As you can see in the video, please make sure that your work should be free from errors. Okay class, after that we will start our chapter. First of all, you will mention the date and page number. Then you will mention thought, that is, some things are common and some things are special according to their place. Full stop, inverted comma, close. Then your chapter number, that is 7. Then your title, article. After that you will draw a diagram. As you can see in the picture, how many types are there? There are two types. One is definite and other is indefinite. So there are two types of articles, definite and indefinite. And the is the example of definite article, and a and an are the examples of indefinite articles. So if someone asks you about the type of the article, you have to tell that definite or indefinite, not the or a and. When somebody will ask you the example of definite, then you will say that the is definite article, or and a and an are indefinite article. After that you will write that definition, that is, articles are words which are used to specify whether the thing is common or particular. So what articles do? They specify whether the thing is common or particular, sorry. So after using, if you are using a and an, it means the thing is common, and if you are using the, it means the thing is a particular, special, or the thing is one in the whole world. Okay, after that we will, as you can see, article also are of two types: definite, that is the, and indefinite, that are a and an. Then use of a and n. When we will use a and n, I is used before a word beginning with consonant sound. When a word start with a consonant sound, then we will use a. And when a word like she has a car, as ka is the sound, consonant sound, so we have used here a, as ka is the consonant sound. Then an is used before a word beginning with vowel sound, and an is used before the words which starts with
vowel sound. As you all know, there are 5 vowels: a, e, I, o, u, and so there are 5 vowel sound: a, e, a, o, u. So as a is an vowel sound, so we have used here an. So I hope you have understood. When the sound is consonant sound, then we will use a. If the sound is vowel sound, that is a, e, a, o, au, that is vowel sound. So according to the sound, we will use a, and then other use of a and an in its original numerical sense of one. When the thing is in one, the quantity or the number of the thing is one, we can also use a and an to show that the thing is one in place of one. If the thing is starting with consonant sound, then we will use a. It means I have one book and wait for 1 hour. So a and an are also used to show one thing. सो क्लास मेक श्योर दैट यू शुड नोटिस द साउंड. जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ें तो आपको उसका साउंड देखना है. अगर उसका साउंड आ, ई, ए, ओ, औ आता है, इसका मतलब वो वॉवेल साउंड है, तो हमें एन यूज़ करना है. और इसके अलावा अगर आपका कोई भी साउंड आता है, अगर बा है, मा, या और का, वा, ये सारे साउंड जो आपके जाते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड में जाते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ए. अगर वॉवेल साउंड है तो ए एन यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो then you will draw a chart like this as I have drawn here. First of all, in center you will write a in a circle. Then you will write some things before which we use a article, as a car, a man, a girl, a bag, a tree, a watch, a boy. As you can see, you will draw the same on a one page. You should draw very properly as you can see in the video. जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना है. थोड़ी सी जगह पे उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे. अगर आप थोड़ी सी जगह में ड्रॉ कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा. और आप पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे हॉर्स की पिक्चर्स हो गई, कार की पिक्चर हो गई, ट्री, बैग, चीज़ों की पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो. After that, you on another page, what you will do, you will write an in a circle. Then you will write something before which we use an, as an umbrella, an elephant, an enemy, an orange, an ink pot. It's pot. So before these things we have written here some examples. Okay class. Then we will learn the use of the. When we will use the, when we speak about of a particular person or thing that is one. So as I have told you, when the thing is very special or the thing is one in the world, we will use the before the thing. As Taj Mahal is a very popular and it is one in the world, so we have used the before it. And कोई भी चीज़ जो आपकी बहुत स्पेशल हो या दुनिया में एक हो, उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? दा यूज़ करते हैं. जैसे ताजमहल आपका एक है और आपका मून भी दुनिया में एक है, तो हमने क्या यूज़ किया? दा. देन व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. when a singular noun is representing about its whole class, then we will use the. लाइक दैट द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. यहाँ पे जो एक डॉग की हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक डॉग फेथफुल होता है और वफादार होता है. जितने भी डॉग होते हैं वो फेथफुल होते हैं. तो यहाँ पे जो एक डॉग है, यहाँ पे जो सिंगुलर डॉग यूज़ हुआ है, ये अपनी पूरी काइंड के एक क्वालिटी बता रहा है कि जितने भी डॉग होते हैं वो फेथफुल होते हैं. इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे द यूज़ हुआ है. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो डॉग है वो पूरी अपने काइंड के बाद, जो जब एक सिंगुलर नाउन अपने पूरी कास्ट की या पूरे काइंड की बात करता है, किसी स्पेशलिटी की बात करता है, तो हम उससे पहले क्या यूज़ करते हैं? द. क्योंकि यहाँ हम एक डॉग की बात नहीं कर, जितने भी डॉग होते हैं वो सब फेथफुल होते हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पे द यूज़ किया. Before name of rivers, seas, oceans, names of books or famous monument, and before the names of rivers like Ganga, Yamuna, Saraswati, seas like Pacific, like seas, then like oceans, like names of book, like famous monument like Taj Mahal. Before the things
also we use the, like we worship the Ganga river, like that. When adjective is used as a noun, when adjective is used as a noun, then we also use the, like the young are more active than the old. as we all know that यंग इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा नाउन ऐसा यूज़ हुआ है, इसलिए इससे पहले क्या यूज़ हुआ है, द। जब कोई एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज़ होता है तो हम उससे पहले क्या यूज़ करते हैं, जैसे ओल्ड भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट और नाउन यूज़ हुआ है, तो इससे पहले हमने द लगाया है। आप यहाँ पे ए और एन यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। देन बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, एज यू ऑल नो, मैंने पढ़ाया था यहाँ पे 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें EST लगता है। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं उससे पहले हमें द ज़रूर यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है EST लगा, टॉलेस्ट, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। या मोस्ट आपका लिखा हो, आपका अगर मोस्ट लिखा हो तो उससे पहले भी हमारा द ज़रूर यूज़ होता है कि वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, लाइक वो जो आपके ऑर्डिनल नंबर है जो सीक्वेंस बताने के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपकी पोजीशन बताते हैं। तो ऐसे नंबर्स लिखने से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे ही इज़ द सेकेंड मॉनिटर, तो वो 2 मॉनिटर नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है क्लास में कि वो सेकेंड मॉनिटर है। तो जब हम इस तरह के ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो पोजीशन बताते हैं, उससे पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। ओके, then after that we again will draw a chart. In middle you will write the and the things before the things we use, the moon, the earth, the sun, the Taj Mahal, the Bible is a book, moon, earth, they all are planets. Okay, then there are some notes you have to keep in your mind when you will use article. बिफोर समथिंग वी शुड नॉट यूज़ आर्टिकल, कुछ चीज़ों से पहले हमें कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर नाउन मीन्स बिफोर द नेम ऑफ, जैसे द, इट वी कैन नॉट राइट द राम, द श्याम, द राधा, किसी के भी नेम से पहले। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का भी नेम, किसी के भी नेम से पहले हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट नेम से पहले द यूज़ नहीं होता है। लैंग्वेज नेम लाइक हिंदी, इंग्लिश, वी कैन नॉट से द इंग्लिश, द हिंदी। मील्स नेम, मील्स मीन जो आपके खाने होते हैं लाइक ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, उनसे पहले भी हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं। सीज़न से पहले द समर, द विंटर नहीं। फेस्टिवल से द दिवाली, द ईद नहीं होता है। डेज़ के नेम से पहले हम द यूज़ नहीं करते, द मंडे, द संडे। मंथ्स नेम से पहले हम द कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड ब्यूटी, उनसे पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एक और चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि आप जब कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं तो आपको आर्टिकल कैसे यूज़ करना है। जब भी आप कोई स्टोरी लिख रहे हो तो जब आप किसी भी चीज़, तो एक स्टोरी में एक ही कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर की बार बार बात होती है, तो जब किसी भी चीज़ की बात आप फर्स्ट टाइम करते हो तो हम उसके साउंड के अकॉर्डिंग ए और एन यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो उसी चीज़ की बात हम दोबारा करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, द, क्योंकि दोबारा जब हम बात कर रहे हैं तो वो चीज़ कॉमन नहीं रहती, वो क्या होती है, पर्टिकुलर हो जाती है। तो व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ या स्टोरी, जब भी आप कोई स्टोरी या पैराग्राफ लिख रहे हो, तो जब किसी चीज़ पहली बार बात होगी तो आप ए एन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड, और उसकी अगर उसी चीज़ की दोबारा बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आई सा अ लॉयन इन द जू, द लॉयन वॉज रोरिंग लाउडली। तो यहाँ पे लॉयन की जब पहली बात हुई तो ये कॉमन लॉयन है, इसलिए हमने ए यूज़ किया। फिर उसी लॉयन की बात दोबारा हो रही है तो हमने क्या यूज़ किया है, द। तो आप जब भी स्टोरी लिखोगे आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी चीज़ की बात पहली बार होती है तो हम ए और एन यूज़ करते हैं। फिर अगर उसकी सेकेंड टाइम हो रही है, थर्ड टाइम, फिर पहली बार अगर हुई है तो हम ए एन यूज़ करें। अगर उसकी दोबारा बहुत बार अगर आती है तो हमें बार बार द ही यूज़ करना है। ओके, आफ्टर दैट यू विल मेंशन एक्सरसाइज, व्हाट वी हैव टू डू, वी विल यूज़ आर्टिकल्स एंड वेयर वी कैन नॉट, you have to keep in your mind at which places we will not use articles, so we will put there
अ क्रॉस, जहाँ हमें आर्टिकल हम नहीं फिल कर सकते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो पहला है वी वर टॉकिंग अबाउट अ मैटर, इट इज़ अ कॉमन मैटर एट डिनर। डिनर इज़ अ फूड नेम, मील होता है आपका, इससे उससे पहले हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, क्रॉस, क्योंकि किसी भी खाने के नाम से पहले द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आई हैव एन एरोप्लेन, इस एरोप्लेन की बात फर्स्ट टाइम हुई है इसलिए हमने एन यूज़ किया है। द एरोप्लेन, बिकॉज उसी एरोप्लेन की बात दोबारा हो रही है इसलिए हमने द एरोप्लेन यूज़ किया है। एंड आई वेरी एक्सपेंसिव, आई ब्रॉट, फिर उसी एरोप्लेन की बात हो रही है तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अगेन यूज्ड द फ्रॉम लंडन। लंडन इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो व्हाट वी हैव डन हेयर, वी हैव पुट अ क्रॉस, बिकॉज किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू इज़ फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, एज इट इज़ अ फर्स्ट इज टेलिंग द पोजीशन कि फर्स्ट मॉनिटर, एक PM की बात नहीं हो रही, पहले कौन से थे, पहली पोजीशन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, ये ऑर्डिनल नंबर है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, द। शी विल कम डैश आर लेट डैश मंडे, सो आर क्या है, आपका वॉवेल साउंड है तो हमने एन यूज़ किया है, और मंडे एक डे का नेम है तो हम इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे तो हमने क्या लगाया है, क्रॉस लगाया। ही वॉज बॉर्न इन 2001, किसी भी ईयर के नेम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ही इज़ अ प्लेयर, प्लेयर इज़ कॉमन सो वी हैव यूज ए। शी हैज़ अ कार एंड अ बाइक, हमने पहली बार कार और बाइक की बात की तो हमने ए यूज़ किया। द कार इज़ वेरी चीप, क्योंकि उसी कार की बात दोबारा हो रही है तो द यूज़ किया है, और उसी बाइक की बात दोबारा हो रही है तो हमने द यूज़ किया है। द पुअर आर वेरी मिजरेबल पीपुल, पुअर आपका जो है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, पुअर एक एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है इसलिए हमने क्या यूज़ किया उससे पहले, द। फिर द लॉयन इज़ वेरी डेंजरस एनिमल, यहाँ पे एक लॉयन की बात नहीं हो रही है कि एक लायन डेंजरस होता है, जितने भी लॉयन होते हैं वो सारे डेंजरस होते हैं, तो यहाँ पे जो एक सिंगुलर लॉयन है वो पूरी अपनी काइंड की बात कर रहा है इसलिए उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, द। So your chapter is completed class, so today you will complete it and tomorrow I'll send you the exercises of book, okay class, thank you.